Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. And I knew it. You will not come in the class. It's not a good behavior. Actually, last time we read about the test data, in which we have learned that if we make a program, we have to pass sufficient data to our program to check the validity of our program regarding its output. Is it? Hope you know that what is the test data. If we had made a program to calculate a Celsius or Fahrenheit, a mass, a volume, or a parameter or some amounts for some shapes, and many other calculations regarding to our program. Then we have to pass different values to our variables for the calculation. If we get the same or actual result according to our algorithm and flowchart, then we can say that our program is very, very correct. If it's any level, at any level, we find some problem and find some errors while we passing the data to our program, to our variables, then we have to recheck our program thoroughly. We have to start the checking of our program's logic from our algorithm or from flowchart. We have to find where the actual problem is occurred. Is it? So the test data is very, very important step while we are doing the programming. Last time test data, we have read that after solving a problem, we need to test whether the solution is correct or not, as I told you. And for testing, we need test data. For example, if we want to test the algorithm to find the largest among 3 given numbers, then we need 3 values. And these values can be positive, negative, or 0. Or we can say that it may be within different digits. Before, when we take the input from our user, then we have to think all the results regarding to the input which will be passing from those users. It will be thoroughly checked our program. क्योंकि यूजर जो है उससे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी क्या है कि हमने उसको फ्री विल दी है कि वो अपनी इस जैसे हमने कहा था कि कोई से भी 3 डिजिट रिस्ट्रिक्शन क्या थी 3 डिजिट्स की कि आप कोई से 3 डिजिट्स जो हैं वो अपनी प्रोग्राम को अपनी कंप्यूटर को दो वो उसमें से जज करके आपको बताएगा कि विच वन इज द लार्जेस्ट. अब क्या है हमने देखना है कि यूजर जो है वो कोई सी भी वैल्यूज पास कर सकता है. हमारे ज़हन में होना चाहिए कि क्या यूजर पॉजिटिव खाली करे या नेगेटिव या 0 वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए. एज यू नो दैट अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटी है तो नेगेटिव वैल्यू होती है. तो हर तरह की थिंकिंग जो है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए इस प्रोग्राम को बनाते वक्त. और फिर डिफरेंट वैल्यूज हम पास करेंगे अपने वेरिएबल्स को, फिर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट. अगर हर टाइप की वैल्यूज पर हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्चुअल रिजल्ट देता है, दैट्स मीन कि वी विल सक्सेसफुल. We have read an activity regarding the biometrics. Last time we have already discussed importance of testing. I'm repeating this topic with you.
Testing is essential to point out the effects and errors made during finding a solution to some problem. It helps in improving a solution. If one solves a problem and someone else uses that solution for commercial purpose, then the commercial activities depend upon the correctness of the solution. अब इन्होंने एग्जांपल दी है एक बैंक की, ठीक है. For example, if we develop a solution for finance management and some banks start using it, यानी कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को हमने फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए बनाया था, लेकिन बैंक डिमांड करता है कि हमारे जो है मोस्टली जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है वो इस सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, तो हम भी इसको यूज करते हैं, ठीक है. Using it, then any error in that solution may result in a financial loss. अब ये बैंक के लिए तो नहीं बना था, ये तो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था. अगर इसको बैंक जो है वो यूज करेगा कि उनकी कैलकुलेशन लेवल कोई और है और फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो कुछ और जो है वो अपनी स्ट्रेटजी रखती है कैलकुलेशंस की. तो अगर वो उसको यूज करता है कमर्शियली बैंक अपनी बिहाफ पर और उसमें कोई एरर आता है, तो उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कैलकुलेशंस के हवाले से, क्योंकि जो निटी-ग्रिटीज जो है वो उसकी फाइनेंस मैनेजमेंट के हवाले से, उनकी कैलकुलेशंस के हवाले से जो है वो सेट की गई प्रोग्राम में, नॉट फॉर द बैंकर्स, इज इट. देन सो टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन. अब अगर ये प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर ये चाहता है कि ये थोड़े से डिफरेंसेस के साथ जो है इसको हम बैंकर्स को भी ये सॉफ्टवेयर सेव कर सकते हैं, तो उसको फिर प्रोग्रामर को उस हिसाब से उसकी वर्किंग करनी होगी. उस तरह का डाटा, उस तरह की कैलकुलेशंस, उस तरह के रिजल्ट्स जो है वो जानने होंगे, या फिर देख सके कि क्या ये बैंकर्स के लिए भी उतना ही सूटेबल सॉफ्टवेयर है या नहीं, ठीक है. लेकिन जिस चीज माइंड में रखते हुए इसने ये सोचकर ये चीज रखी है कि अगर ये इससे कैलकुलेशन से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर बैंकर्स भी यूज करते हैं, तो बिफोर लॉन्चिंग अ सॉफ्टवेयर he has to check its software, is it. Another example, last time we already discussed that a car is delivered to a customer after testing. Even कि मशीनरी या कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होने के लिए आती है उसको थॉरली चेक किया जाता है, ठीक है. उसके अंदर जितने भी डिफॉल्ट्स हैं उनको जो है वो फाइंड आउट करके रखा जाता है और फिर उनकी कैटेगराइजेशन कर दी जाती है और फिर उस हिसाब से उनके प्राइस टैग्स जो है वो उनके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है. तो यानी कार का एग्जांपल है, मैं आपको वैसे फर्दर बता रही हूँ कि जो भी चीज मार्केट में आती है वो बहुत सारे टेस्ट पास करके फिर ही सेल होने के लिए मार्केट में लाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फॉल्ट, कोई भी डिफेक्ट जो है वो जो है सेलर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है. इसी तरह ये तो बहुत जो कॉस्टली चीजें हैं जैसे व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनमें कोई भी इस तरह का जो है वो डिफेक्ट निकल आता है, फाइंड आउट हो जाता है, तो इट विल इफेक्ट द होल कंपनी, ठीक है. होल कंपनी का जो भी इमेज है वो सारा का सारा डैमेज हो जाएगा. इस तरह कार मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भी अपनी मतलब एक एग्जाम्पल जो बुक में दी है उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, आप इसको अपनी हर तरह के प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट दिया. तो ये बहुत एक सेंसिटिव इशू होता है जब आप एक चीज कमर्शलाइज करने जा रहे होते हो, मार्केट में बेच रहे होते हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट. Software is now and also a product for the marketing point of view.
तो हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो मशीनों को रन करने के लिए काम आते हैं, और दूसरे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपकी वर्किंग जो है कॉस्ट और टाइम को बचाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो उनको भी वैसे ही टेस्ट से पास करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो वापस आते हैं कार की एग्जांपल से। कार की उसने एग्जांपल हमें ये बताई है कि वो बिफोर लॉन्चिंग अ कार टू द मार्केट, वो उसको भी हर तरह का टेस्ट पास करना, उसका टेस्ट उसकी मशीनरी की, उसके मैकेनिज्म की, उसकी जो है ऑटोमेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब चेक की जाएंगी। एक और जो है लग्जरियस गाड़ियों का जो फीचर है जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि गाड़ियां जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, सेफ गाड़ियां जो है वो बनाई जा रही है, यानी कि कोई भी इनको हादसा पेश आए तो ऑटोमेटिकली एयर बैग्स जो है वो गाड़ियों के अंदर खुल जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। इट डिपेंड्स के प्रोग्रामर ने जो एक सेंस जनरेट की है विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रोग्रामिंग, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से उसने गाड़ी को एक सेंसिबिलिटी दी है कि वो फोर्स को जज करे कि व्हाट टाइप ऑफ द फोर्स। उसने उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू दी होगी कि कितना जो जर्क है, कितने लेवल का जर्क होगा कि ये ऑटोमेटिकली एयर बैग्स में खुल जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बिफोर द लॉन्चिंग अ कार वो इस टेस्ट को इस तरह से करते हैं कि एक रोबोटिक ड्राइवर जो है वो जो है उसके अंदर बिठाते हैं और उस कार को हिट कर कर देखते हैं वॉल के साथ विद डिफरेंट फोर्स अप्लाइंसेस के साथ। डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं और फिर देखा जाता है कि किसी भी लेवल पे ऐसा तो नहीं है कि उसने सेंस न किया हो इस जर्क को और एयरबैग्स ना खुले हो। तो इस तरह से एक एक पार्ट ऑफ द मशीनरी जो है वो चेक की जाती है, उसकी अलाइनमेंट्स, उसकी, मतलब एक कार की एग्जांपल दे रही हूँ तो ये सब चीजें मैंने क्या कहा आप हर एक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फिर ही उसको जो है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है। फिर इसी तरह से अगर आप पेट्रोल की आप देखते हैं एग्जाम्पल, पेट्रोल पर जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं पेट्रोल को जो डिलीवर किया जाता है गाड़ियों में, तो क्या होता है उसके अंदर वो इनपुट देते हैं, डिजिट्स उनकी मशीन के ऊपर मार्क हुए होते हैं। अब जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, उसको डिफरेंट इनपुट्स देते हैं, वो कहता है कि मुझे 100 का पेट्रोल डाल। उसमें क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ द लिक्विड वो ऑटोमेटिकली मशीन खुद ही करेगी। ठीक है, एक किस तरह की दूसरी तरह की इनपुट आएगी, वो कहेगी मुझे आप जो है वो 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो इसने इनपुट जो है वो लीटर्स में दी और मशीन खुद ही अमाउंट कैलकुलेट कर दी। ठीक है, देखिए कितना सेंसिटिव इशू है। अब वो जो पाइप्स के दिए जा रहे हैं उसमें जो फिजिकली तो उनको नजर नहीं आ रहा ना कि किस तरह से वो उससे पेट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है मशीन से गाड़ी में। तो मशीन ही खुद ही जज कर रही है और वो खुद ब खुद उस नंबर ऑफ अमाउंट पे जाके जो है वो स्टॉप हो जाती है, चाहे इनपुट उसके पास एज ए लीटर्स में आई हुई हो या एज ए रुपीज आई हुई हो। तो अगर उस प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो ये नुकसान होगा पेट्रोल पंप के मालिक को। तो इस तरह से और भी बड़ी सारी एग्जांपल हैं जो भी मेजरमेंट और कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो है वो यूज हो रही हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिपेंड करती है टेस्टिंग ऑफ डाटा। हो गया, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आती है। मैंने ये थोड़ा सा इसलिए रिपीट किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटीज होंगी तो मैं इसको मजीद क्लियर कर दूँ। आपको ये बात जहन में होना चाहिए कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके डिफरेंट स्टेप्स को हम पढ़ते पढ़ते जो है कोडिंग लेवल पर आ चुके थे, कोडिंग कर चुके हैं हम। अब कोडिंग करने के बाद हम अपने प्रोग्राम की वैलिडिटी और उसकी वेरिफिकेशंस को देख रहे हैं थ्रू पासिंग टेस्ट डाटा। जो टाइप ऑफ टेस्ट डाटा हमने ये पढ़ा था कि वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है, आप इसको दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, एब्सेंट डाटा वगैरह वगैरह।
ठीक हो गया। ये अब चलते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की तरफ। अभी एग्जाम्पल को मैंने इसलिए रिपीट किया है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट। The verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. For example, ये है verification की definition। इसके लिए टेस्ट ऑफ डेटा के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा और इसको मार्क कीजिएगा। अब वो एग्जाम्पल है, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving result for compound interest, not for the plain interest. ये बैंकिंग की एक मिसाल है। इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटेड अमाउंट पर जो सबमिट किया जा रही है उसके ऊपर भी क्या है, प्रोग्रामर ने वर्किंग की हुई है और वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है वो उसको वो डिफरेंट अमाउंट्स पर वेरीफाई करके देखेगा कि इसका रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब पता है कब तक ये चलता रहेगा। वैलिडेशन मीन टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये सॉल्यूशन जो आपने निकाला है, जो आपका प्रोग्राम आपको दे रहा है, वो किस हद तक ठीक है। For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not. If a solution is verified, then it is validated with the help of the test data as discussed in previous section. मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर तरह के टाइप ऑफ डाटा पर हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से करना चाहिए। उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसकी प्रोग्रामर की वो बिल्कुल वो जो उसने पेपर वर्क किया उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। अब देखें एक एग्जांपल है, देयर आर टू एग्जांपल्स के लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू पिज्जा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज्जा। You state your requirement that it should be less spicy. You also expect that it would taste good. When the pizza arrives, you can observe that it is a chicken pizza. This is called verification. Note it down कि जो आपने कहा था पिज्जा ऑर्डर करने के लिए ये वही है। Yes, then it will call verification. Now, when you eat the pizza, you can check whether it is less spicy or not. It tastes good or not. This is called validation. It's quite easy and simple example to understand the difference between the verification and validation. Let's see the next example. Let's assume that you are asked to write an algorithm that takes as input a list of numbers. The algorithm should display the list arranged in ascending order. After writing the algorithm, you submit it to your teacher. Your teacher provides a list of numbers to the algorithm. If your algorithm displays a list of numbers, then it is verified. ठीक है, मैं आपके टीचर उसको ये नंबर आपके प्रोग्राम में पास कर देखेंगी एल्गोरिथम में, तो वो आ जाता है, तो दैट्स मीन जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। Instead, if your algorithm display an answer in yes or no or display something else, then it is not verified. Is it? If your